Yes, ma'am. ओके नाउ अदर देन कॉम्प्रिहेंशन सी मैंने बताया था किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है. देयर विल बी जंबल सेंटेंसेस, ठीक है. यू हैव टू अरेंज दी सेंटेंसेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ. दे कैन बी a big sentence and you have to find out which one of them the options, the sentences would be broken in 4 or 5 options and you have to tell which one is incorrect. Okay. एंड देर आर फ्यू क्वेश्चंस की जिसमें आपको बताना होगा कि कोई एक राइटिंग रहेगी, ठीक है. कोई एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसके ही 3-4 वर्जन्स आपको दिए रहेंगे. उसमें से पता करना है कि विच वन कन्वेज द बेस्ट मीनिंग. दैट मीन्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट मीनिंग, which the sentence which extract the best meaning of your जो भी वर्ड्स उसमें लिखे गए हैं, ठीक है. वो मतलब पर्टिकुलरली जो सेंटेंस में कहना चाह रहा है राइटर, ओके, उस सेंटेंस का एक अच्छा मीनिंग जो होता है, सबसे बेस्ट मीनिंग कैसे कन्वे किया जाए, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, राइट. लाइक अगर मैंने आपको बताया था वर्ब में, यहाँ पर वर्ब में आप देखिए वर्ब फाइल में, दैट इफ आई एम राइटिंग सम सेंटेंसेस, ठीक है. मैं अगर कोई सेंटेंसेस राइट कर रही हूँ, उसके 2-3 वर्जन होते हैं, राइट. आई कैन ईदर राइट वी गेव द चाइल्ड अ पेन, और वी कैन राइट वी गेव a pen to the child, right. There are different subjects, there are different ways to write the sentences. So उसी तरह आपको लिखना है, उस यहाँ पर डिफरेंट वर्जन्स दिए जाएंगे, बट डिफरेंट फॉर्म जो होता है सेंटेंसेस का, इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस, इट कन्वेज डिफरेंट मीनिंग, ठीक है. इधर इट कंटेन्स जो होता है, देखिए वर्ड्स का मैंने आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज कि वर्ड्स कन्वे 2 टाइप ऑफ मीनिंग. वन इज योर लिटरल मीनिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ डिक्शनरी, ठीक है, जो कि डिस्कस किया गया है कि यही इस वर्ड का मतलब है. एंड द सेकेंड वन इज द मीनिंग दैट इज कन्वेड बाय द सेंटेंस इन विच इट इज यूज्ड, ठीक है. जिस फॉर्म में, जिस एक वैल्यू को उसमें डाला गया है कि क्या वैल्यू है उस सेंटेंस में उस वर्ड का, that is the another meaning, or you can say loose meaning of your word. So try this question. ये question try करें. You have to put these sentences A, B, C, D, E. 5 sentences are there. You have to put them in proper sequence. ठीक है. This is, yeah, these are the options, and you have to put these sentences into a proper paragraph. You have to form a paragraph that conveys a proper meaning. Okay. I'm giving you time, how much you want to take. Let's keep a stopwatch and let's see how much time does it take for you to solve this. Yes, your time starts now. Read this question carefully. Okay, you have to find a meaningful paragraph rearranging these sentences. क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्या करना है? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? No, ma'am. हाँ, तो you can take your time and try to solve it. Read every sentence very carefully, try to understand the meaning of these sentences, okay, and then rearrange them into a meaningful paragraph. आपका हर एक सेंटेंस जो है कोई भी गलत नहीं है, उसको एक परफेक्ट फॉर्मेट में आपको बैठाना है. जैसे आप कोई आर्टिकल रीड करते हैं, उसका एक परफेक्ट फॉर्मेट होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या लाइन कब लगेगी, तो आपको इसका रीअरेंजमेंट करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके.
And timer is going on. If you're not able to understand the meaning, you can also ask, ठीक है? But try to make it fast. Time management is more important than solving the questions. You will not be given all the time in the world for your exams. What is the issue? What is taking so long to solve? I've shared this question in other classes. They have solved it within 1 minute. And that too, I might add, is more than required time. You have to try to solve it within seconds. See the timer? This much time you have been taking. It is 4 minutes now. क्यों इतना टाइम लग रहा है बच्चे? Okay, मेरा ऑप्शन approximately. ए है. Okay, you have come to a conclusion. Option A is your answer. Okay, any other student? Ruchi, Naina, Rajneesh, have you tried solving the question? मैम ए ही होगा. A ही होगा. Okay. Chaliye, we have 2 votes for A. Anyone else who would like to give another answer, or shall we continue with this? Okay, how is A is the correct answer? Tell me, what is the meaning of the sentence? What is what is the main purpose to write this passage? क्या meaning convey करना चाह रहा है writer? What problem is discussed in this paragraph? See here, it's talking about, the writer is talking about the economy, okay, that is affected by the state Goa, right? गोवा का जो प्रोड्यूस पॉपुलेशन है उसका क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ, राइट? ये पैराग्राफ ma'am. में वही चीज कन्वे किया जा रहा है, ठीक है? तो आपने बी से स्टार्ट किया, आप ऑप्शन ए है, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग विद द सेंटेंस बी. ओके, तो बी सेंटेंस में क्या लिखा है ये देखिए. अर्ली लास्ट ईयर अ सिमिलर एजिटेशन coaxed the government into calling for a revision of the Goa Regional Plan to Q11. अब मुझे ये बताइए कि when this line, this word comes somewhere, इसका क्या मतलब होता है? Similar मतलब क्या होता है? What is the meaning of similar? हाँ, similar मतलब क्या होता है? गूगल काम देते हमको बस.
मैम सिमिलर का समान। मतलब हाँ समान, कुछ कोई भी चीज जो है वो सिमिलर है इस चीज के जो रेफर यहाँ पर की जा रही है। अब मुझे ये बताइए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग सिमिलर, ठीक है, इफ आई से दैट बीबीएम क्लास इज सिमिलर टू द बीबीए क्लास, ठीक है, दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग टू थिंग्स, सो आई हैव टू मेंशन टू थिंग्स ना, आई हैव टू मेंशन सम क्लासेस, राइट। अगर मैं दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ दैट इज सिमिलर इन सम वे, ठीक है, कुछ चीजों में वो सिमिलर हैं, तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगी तब तो मैं कंपैरिजन करूंगी कि वो सिमिलर है या नहीं। सो द यस स्टार्टिंग मैम। लाइन, हाँ, तो स्टार्टिंग लाइन जब यहाँ पर बोल रहे कि देयर इज अ सिमिलर एजिटेशन, दैट मीन्स यहाँ पर एजुटेशन जिसकी बात हो रही है, जो भी रीजनल प्लान्स की बात हो रही है, दैट इज बीन डिस्कस्ड बिफोर दिस लाइन। इससे पहले कुछ डिस्कशन हुआ है जिसका सिमिलैरिटी इस लाइन में बताया गया, तो हाउ कैन दिस लाइन विल बी द फर्स्ट वन टू मेक द पैराग्राफ? हाउ कैन यू मेक सेंस इफ यू आर कंपेयरिंग समथिंग विदाउट इवन मेंशनिंग समथिंग? तो ये चीज तो होगी ही नहीं कभी फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में क्या होना चाहिए तो वो देखते हैं हम लोग, बाकी लाइनें पढ़ते हैं, ठीक है। The upsurge of public activists against the setting of a special economic zone, which eventually forced the state government to announce the scrapping of 15 such projects, is an, see again here, such products, ठीक है, such projects मतलब कुछ कोई प्रोजेक्ट है जिसके सिमिलर ये 15 प्रोजेक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। तो दैट मीन्स अगेन हियर दिस कैन नॉट बी योर फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज यू हैव टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग बिफोर कंपैरिजन, राइट। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि इसके जैसे 15 प्रोजेक्ट्स पहले ही गवर्नमेंट जो है वो कर रहा है, तो कौन से प्रोजेक्ट, व्हाट प्रोजेक्ट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो व्हाट प्रोजेक्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? स्टार्टिंग आपका क्या होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी देखिए क्या होगा ऑप्शन, द ब्रॉड बेस्ड एजिटेशन अगेंस्ट SEZs have demonstrated the power of popular protest in the state। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका सर पैर कुछ नहीं है। इफ यू आर पुटिंग इट इनटू द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट लाइन में अगर आप डालते हैं सेंटेंस सॉरी पैराग्राफ के, सो दिस डजंट मेक्स एनी सेंस, ओके। Now next is those opposed to the project has questioned the priority of the government। मतलब यहाँ पे some project is being talking about, ठीक है, project की बात की जा रही है, but which project? So obviously this cannot be the first line। E क्या है आपका? A coastal state with an area of 3,700 square kilometer and a population of around 1.4 million, Goa has always been extremely sensitive in the impact of unrestrained economic development। Now tell me something, if I want to write an article about something or say if I want to write a paragraph about something, तो मैं उस टॉपिक को पहले इंट्रोड्यूस करूंगी तब तो उसके बारे में लिखूंगी, राइट और नॉट? if I'm writing about something, ठीक है, any written communication, like if I'm writing यस a मैम। report, हाँ, तो कुछ भी मैं लिख रही हूँ, so that means I have to introduce the thing that I'm writing about। So here, if I'm writing about Goa and its effect on economy, then I have to introduce Goa first, right? So this will be your first line। यस मैम। E जो है वो आपका पहला लाइन होगा because there is an introduction of Goa, ठीक है, and its contribution in the economy, okay। So अगर E आपका पहला ऑप्शन है तो which option will be the correct one? Which option will be the correct one? C मैम। Yes, C will be your correct option। अभी समझ में आया how you would like solve this question? यस कैसे मैम। आप, हाँ, तो आप अगर इफ यू आर गोइंग टू लाइक दिस, अगर आप सारे एक बार सेंटेंस पढ़ोगे तो यू विल नो कि विच वन यू विल बी गोइंग लाइक विद द स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन might be the easiest one to find in these questions, ठीक है। when you are making a like when you are formulating a paragraph, तो सबसे easy होता है that you either want to find a the starting line, because starting line introduces your some problem or the topic that you are discussing in the paragraph। So if you're starting with something, that means you're introducing something, ठीक है। डिस्कशन के बारे में पहले बताया जा रहा है किस चीज का डिस्कशन होगा,
So that line is easiest to find. So if your options are like this, कि आपको एक कोई भी similar नहीं है, right? कोई भी similar नहीं है. If you just have one option and from the first option you can differentiate within everyone. इसके पहले ही ऑप्शन से, पहले ही सेंटेंस से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दैट मीन्स इट्स द इजीएस्ट वे टू फाइंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू find the first sentence to ma'am. start the paragraph. Okay. Now next question is, यहाँ पे देखिए ये चीज क्या बोल रही है. Choose the option which gives the best way of writing the sentence, ensuring the message is correctly conveyed. That means कि आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, उसका स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, जो कि आपका जो मैसेज है, ठीक है, वो मैसेज एकदम सही तरीके से आपके रीडर्स को या आपके लिसनर्स के पास पहुंच रहा है. ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, ma'am. हाँ. सो विच वन वुड बी द राइट ऑप्शन, ये आपको सिलेक्ट करना है. सो रीड दिस एंड टेक योर टाइम. हम लेट्स सी हाउ मच टाइम यू टेक दिस टू सॉल्व. See, there are a lot of commas in these sentences. That means these sentences are different sentences are joined via the commas. Okay, so you have to in a way you have to find the correct placement of these sentences. Okay, आपको एक तरह से यही वाला काम करना है यहाँ पर भी, कि करेक्ट वे में कौन से सेंटेंस सही जगह लगाए गए हैं, so to convey the best meaning. Okay. मैम C लग रहा है. B और D? No, मैम C और B लग रहा है. C. Okay. So you just have to find which one puts the right commas in the sentence, right? Ma'am, D. D, okay. We have C and D. मैम राइट आंसर क्या है इसका? Okay, let's see right answer क्या है इसका, वो हम देखते हैं. देखिए इस सेंटेंस में जो सारे सेंटेंस है, इसका मैसेज क्या वो बोलना चाह रहा है राइटर, वो कोई समझा सकता है मुझे? Does anyone understand what the sentence is about? See, there's a geographical location and structures are talking about in the sentences. Okay, यहाँ पर stables की बात की जा रही है, ठीक है, cottages की बात की जा रही है, outhouses की बात की जा रही है, ठीक है. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपका plural लगेगा, ठीक है, and with किस phrase में plural जो है words use होते हैं. Then you can find the correct answer. Okay, so let's start with the A. There were great stable, ठीक है, there were great stable. First thing to note, there were, there और were दोनों ही आपका plural में use होता है, and stable is written, this is singular, so this is incorrect. Okay, ये तो grammatically ही incorrect है. Okay, next is there were great stables. Okay, this one is correct. Next is where a dozen grooms and boys held forth, rows of vine-clad servants' cottages, an endless and orderly array of outhouses, long grape arbors, green pastures, orchards, and berry patches. ठीक है. बी ऑप्शन किसी ने कहा था, इसमें कोई
Yes. मैम मैंने कहा था। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट। ये बी ऑप्शन जो किसी ने कहा था, सनी ने कहा था। यस मैम। ओके, तो बी ऑप्शन में मुझे ये बताइए कि आपको कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रहा है, राइट? और किसी ने डी कहा था, ठीक है, डी कहा था, तो डी में भी देख लेते हैं, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंट एग्जैक्टली, तो उसमें पता चल जाएगा कि विच वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। There were great stables where a dozen grooms and boys held forth. यहाँ तक सिमिलर है। Rows of vine-clad servants' cottages तक सिमिलर है। An endless and orderly array of outhouse. See, यहाँ पर outhouses है and यहाँ पर outhouse है, okay? यहाँ पर long grape arbors है, यहाँ पर long grape arbor है। Green pastures है, green pasture है। Orchids हैं, यहाँ पर ऑर्किड है। बेरी पैचेस हैं, यहाँ पर बेरी पैच है। ठीक है, तो दोनों में से करेक्ट कौन होगा कैसे पता चलेगा? इन वर्ड्स का पहले आप मीनिंग समझिए। आर्बर मतलब क्या होता है? अच्छा, आउट हाउस मतलब क्या होता है? पहले तो आउट हाउस बताइए, आउट हाउस क्या होता है? आउट हाउस क्या होता है? सी, आउट हाउस जो होता है, हम लोग यहाँ बिहार में बहुत लोग जानते होंगे, हम लोग का जो मेन आपका घर होता है, राइट? घर के बगल लाइक आंगन के एरिया में एक छोटा सा आउट हाउस बनता है, राइट? क्या उसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं बच्चे? घर, आपका जो मेन घर है, मान लीजिए आप 2 स्टोरी बिल्डिंग बना दिए, ठीक है, उसके चारों तरफ आपने फेंसिंग की है और थोड़ा सा एरिया है आगे बैकयार्ड का, या फिर नहीं, जो आपका इमारत। क्या बोलते हैं? इमारत। नहीं, इमारत नहीं, देर इज सम लाइक आउट हाउस को मैं हिंदी में नहीं, क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन जैसे मान लीजिए पुराने जो हिंदी में घर मुझे भी होते, नहीं पता मैम। हाँ, तो पुराने जो घर होते थे, ठीक है, पुराने घरों के आगे में, ठीक है, जो आंगन होता था, वहां पर एक छोटा सा मतलब कॉटेज टाइप का बनाया जाता था, एकदम छोटा सा 1 रूम समथिंग, तो उसको आउट हाउस बोलते थे, ठीक है। एंड आउट हाउस आर ऑल्सो रेफर टू लाइक वॉशरूम्स फॉर एल्डर डेज, ओल्डर डेज, ठीक है, जो पहले के जमाने में जो वॉशरूम्स होते थे, वो उनको भी आउट हाउस बोला करते थे, ठीक है। तो वो दोनों का मीनिंग अलग अलग है, बट यहाँ पर एरेज ऑफ आउट हाउस, दैट मीन्स देर आर स्मॉल आउट हाउस, जो कॉटेजेस हैं, सर्वेंट कॉटेजेस हैं, उसके आगे में एक आउट हाउस है, 1 सिंगल रूम समथिंग एरिया है वहां पर, सिंगल रूम का, ठीक है। अब आर्बर क्या होता है? आर्बर आपका होता है वो आपने किसी किसी घर में देखा होगा कि एक जो ये रहता है, क्या उसको बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर से वाइन्स जाते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह जाते हैं, ठीक है। पैस्चर जो होता है आपका, पैस्चर क्या होता है? पैस्चर एक एरिया को बोलते हैं, एक छोटा सा एरिया जहाँ पर आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से लैंड ऑफ मतलब एक तरह से प्लॉट कह सकते हैं उसको, ठीक है, अ सिंगल प्लॉट यू कैन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, दैट ओनली, अगर आप सिर्फ एक चीज की बात करें, ठीक है, एक घर की बात करें या एक किसी के घर की बात करें, मान लीजिए मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, तो उसमें एक ही आउट हाउस होगा, ठीक है, आर्बर एक ही होगा, पास्चर एक ही होगा, ऑर्चर्ड एक ही होगा, पैच एक ही होगा। बट यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही है? क्या एक ही एरिया की बात हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए सब आपका प्लूरल में है, दैट मीन्स स्टेबल्स हैं, एक से ज्यादा स्टेबल की बात हो रही है, एक से ज्यादा ग्रूम्स और बॉयज की बात हो रही है, तो एवरीथिंग शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, किसी को डाउट इसमें? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? नो मैम। ओके,
नेक्स्ट इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको यही करना है। दीज आर द 4 ऑप्शंस, इसमें से आप करेक्ट कौन सा होगा ये मुझे बताइए। विच वन वुड बी करेक्ट? मैम ए। ए, ओके। बाकी पढ़े कि सिर्फ ए ही पढ़ के बोल दिया ए सही है? अच्छा, यहाँ पर देखिए एक मिसिंग है शायद, कॉन्टेक्चुअल एरर हो, देन होगा। ओके, सबने पढ़ लिया? ओके, और कोई ऑप्शन कोई बोलना चाहता है? और आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। मैम डी। डी, ओके। मैम राइट आंसर क्या है इसका? दो ही लोग तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैम कैमरा ऑन करवाइए सब। अच्छा ठीक है, सी एक ए ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन है, ठीक है। बी और सी को क्यों एलिमिनेट किया है मुझे ये बताइए। बी और सी को एलिमिनेट क्यों किया? बी और सी को क्यों एलिमिनेट किया आपने? मैम बी का सेंटेंसेस मेरे को सही लगा मैम। बी का सेंटेंस सही नहीं लगा? अच्छा, मतलब आपको जो साउंड कर रहा है सही, आप उसको ऑप्शन में ले रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। देन देयर इज द पंपिंग प्लांट फॉर द आर्टिसंस वेल and the big cement tank where Judge Miller's boy took their morning plunge and kept cool in the hot afternoon. इसमें क्या बोलना चाह रहा है राइटर? ठीक है, राइटर किसके बारे में बात कर रहा है? राइटर किसके बारे में बात कर रहा है? एक एरिया बता रहा है, ठीक है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टिल हेयर, ठीक है। बिग सीमेंट टैंक तक एरिया है। एंड देन जज मिलर्स बॉय, द बॉयज ऑफ जज मिलर वहां पर मॉर्निंग प्लंक लेते थे, आफ्टरनून को वो धूप से बचने के लिए वहां बैठते थे, राइट। ये उनका कहने का ये है, मोटिव है। यहाँ पर जो मेन मीनिंग है इसका, वो सेंटेंस में ये मीनिंग है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि पहली बात तो व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, मैंने बताया था आपको
कि when you're writing something, ठीक है, if you're not doing it while you're writing, ठीक है, तो आप written में आप कभी भी कोई भी format, जैसे if you're reading a story, ठीक है, in literature you might have read some stories, तो आपको पता होगा कि सारी stories हमेशा क्या रहती है, past tense में रहती है, right? Yes, present ma'am. tense में अगर कोई statement कोई बोलता है तो वो कॉमास में रहता है, राइट? डबल कोटेड कॉमास में रहता है. तो इफ यू आर टेलिंग अबाउट समथिंग, इट शुड बी इन प्रेजेंट, लाइक पास्ट टेंस. तो ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया बिकॉज दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस. Present tense. ठीक है, अब बी क्यू एलिमिनेट हुआ, बी इसलिए एलिमिनेट हुआ, इसमें क्या है कि देन देयर वाज द पंपिंग प्लांट फॉर द आर्टिसंस वेल, the big cement tank where Judge Miller's boy took their morning plunk and kept cool in the hot afternoon. ठीक है, ये सिमिलर है इससे, बस इसमें पास्ट टेंस है. ठीक है, तो इसमें अभी तो कोई गलती नहीं देखी, आगे देखते हैं आगे ऑप्शन में. Then there was a pumping plant for the artisans well. The big cement tank were here. यहाँ पर देखिए where है, ठीक है, यहाँ पर were है. Were Judge Miller's boy took their morning plunk and keep cool in the afternoon. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है एक जगह जहाँ पर जज मिलर के लड़के वहां जाते थे. ठीक है, तो यहाँ पर वेयर का मतलब जाना हुआ ना. When I'm talking where are you, ठीक है, if I'm asking मतलब आप कहाँ हो, ठीक है, आपका पोजीशन बता रहा है. ठीक है, where were you, were is not like a question, ठीक है, या पोजीशन बताने वाला. were and where का मीनिंग आपको पता है ना, इट इज अ डिफरेंट मीनिंग. वर जो है Yes, आपका ma'am. वर्ब, वर जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है. ओके, तो वर और वेयर में डिफरेंस होता है. दिस हैज अ ग्रामेटिकल एरर, तो सी एलिमिनेट हो गया. अब डी क्या है, देन देयर वाज द pumping plant through though the artisans well and the big cement tank where Judge Miller's boy took their morning plunk and kept cool in the afternoon. Now B and D इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लिखा है कि पंपिंग प्लांट फॉर द आर्टिजन वेल, यहाँ लिख रहा है पंपिंग प्लांट दो द आर्टिजन वेल. अब दो और फॉर में क्या अंतर है, दो कब यूज करते हैं आप, ऑल्दो से अपने सेंटेंसेस स्टार्ट होते हुए सुने थे, राइट? ऑल्दो यू आर इन फर्स्ट ma'am. ईयर, you are starting the CAT and MAT examination syllabus. ठीक है, although का मतलब होता है या दो का मतलब होता है, that means मतलब जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना कि भले ही आप ये काम कर रहे हैं फिर भी ये भी काम करिए. ठीक है, so that is what meaning is conveyed by when you are using